پاکستان میں TTP کی بات کریں تو وہ کافی مضبوط ہوتی جا رہی ہے. ہم پاکستان آرمی کی بات کریں یا عام علاقوں میں حملے کافی بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی بیتے دنوں کوئٹہ میں ایک حملہ ہوا جس کے اندر ایک بہن بھائی کی جوڑی اس حملے میں ماری گئی, ساتھ ہی کچھ پولیس آفیسرز بھی مارے گئے. میرا سوال یہ ہے کہ TTP لگاتار اتنا مضبوط ہو رہا ہے, پاکستان اس پر کچھ کرنے میں کیوں سکشم یا کیوں مضبوطی سے اس کا سامنا کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے؟ امبر, پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت شکریہ, آپ دلی میں بیٹھی ہوئی ہیں اور پاکستان افیئرز پہ دلچسپی لے رہی ہیں. ایک تو بہت شکریہ اس کا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو کرائسس ہے پاکستان کے اندر سیکیورٹی کا, یہ پاکستان سینٹرک نہیں ہے. اس کے جو اثرات ہیں یا اس کی امپیکٹ ہے وہ انڈیا پہ بھی ہے. اگر ہم مل کر اس بات کو سمجھیں گے تو یہ بینیفٹ میں ہوگا, اس ریجن کے بھی بینیفٹ میں ہوگا, پاکستان کے بھی بینیفٹ میں ہوگا, افغانستان اور انڈیا کے بھی بینیفٹ میں ہوگا. ایک بات تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ پاکستان کے اندر جو لیٹسٹ سیکیورٹی کرائسس ہے یا ریسنٹ پاسٹ میں بھی جو سیکیورٹی کرائسس رہا ہے, ٹیررزم رہا ہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ افغانستان کا آن گوئنگ کانفلکٹ ہے. افغانستان کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے تو اس کا وہ جسے کہتے ہیں اسپل اوور ایفیکٹ, جب ڈیم بنتے ہیں تو اس کا جو پانی فلو سے بڑھ جاتا ہے تو وہ پانی گرتا ہے آگے کی طرف. تو وہ جو ٹیررزم کا اسپل اوور ایفیکٹ ہے وہ پاکستان پہ پڑا, اور اس کا ایک امپیکٹ ظاہر ہے وہ ہندوستان کے اوپر بھی پڑتا رہا ہے اور پڑا بھی ہے. پاکستان بھی وکٹم ہے ٹیررزم کا, افغانستان بھی وکٹم ہے ٹیررزم کا, اور ہندوستان بھی وکٹم ہے ٹیررزم کا. میں اب اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کی کر رہا ہوں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز اس میں کس طریقے سے ملوث ہے. آپ نے TTP کی بات کی کہ TTP بہت بڑی اسٹرانگ ہو رہی ہے. TTP is getting strong, but it is not as strong as it was in 2007, 8 and 9 and 10 until 2014. جو TTP ہے, پہلے TTP کو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ہاؤ آئی انڈرسٹینڈ TTP. جب 9/11 ہوا تو بہت سارے جو ملیٹنٹس ہیں, طالبان بھی, القاعدہ بھی, وہ مائیگریٹ کر کے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ایک علاقہ ہے جو پاکستانی ٹیریٹری میں ہے, ٹرائبل ایریاز اس کو کہتے ہیں, لیکن یہاں پر جو بارڈر پاسنگ ہے, بارڈر کراسنگ ہے افغانستان کے ساتھ, وہ بڑی آسان تھی, بڑی ایزی تھی, کیونکہ جو برٹش راج سے یہاں پر جو ڈیورنڈ لائن ہے اس کا وہ پراپر طریقہ کار یا کوئی دیر واز نو اسٹرکچرڈ وے آف پیپل بیکاز کراسنگ, جسے کہہ لیں کہ اسٹرکچرڈ نہیں تھا کہ کراس کرنا ہو, ادھر ادھر آنا جانا ہو تو اس کا اسٹرکچرڈ ماڈل موجود نہیں تھا. تو اس کو فائدہ اٹھا کے ملیٹنٹس جو ہے وہ یہاں پر آ کے ٹرائبل ایریاز میں آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے اٹیکس کیے, افغانستان کے اندر بھی اٹیکس کیے, پاکستان کے اندر بھی اٹیکس کیے. پاکستان نے ملٹری آپریشنز ان کے خلاف شروع کیے. جو وار اگینسٹ ٹیررزم ہے امریکہ کی, اس کی جو فرنٹ لائن سٹیٹ تھی وہ پاکستان تھی, اور پاکستان کے اندر بھی اٹیک ہونے لگ پڑے طالبان کے, القاعدہ کے. اور ہوا یہ کہ 2006 میں یہ جو طالبان گروپس تھے مختلف گروپس میں ڈیوائیڈڈ تھے, مختلف ڈفرینٹ ملیٹنٹس گروپس تھے. یہ ان سب ملیٹنٹ گروپس کو ایک یونیفائیڈ امبریلا میں لایا گیا, اور ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا بیت اللہ محسود. بیت اللہ محسود جو ہے انہوں نے سب کو اکٹھا کیا. اور بیت اللہ محسود کون تھے؟ بیت اللہ محسود افغانستان میں بھی لڑ چکے تھے اور کشمیر میں بھی وہ جہاد میں حصہ لے چکے تھے. تو انہوں نے ہی واز ویری پاپولر امنگ دا ملیٹنٹس. انہوں نے اکٹھا کیا تمام ملیٹنٹس کو, اور تمام جو ملیٹنٹس ہیں وہ انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی جسے کہتے ہیں تحریک طالبان پاکستان. اور پھر جی آپ نے دیکھا کہ تحریک طالبان پاکستان جو تھی اس نے پاکستان میں بڑے آرگنائز
अटैक्स जो हैं वो शुरू कर दिए 2007 में, जो सबसे बड़ा लॉस हुआ पाकिस्तान को। पाकिस्तान की ट्वाइस इलेक्टेड फीमेल प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो, she was assassinated in Rawalpindi on 27th of December 2007. That was carried out, that act of terrorism was carried out by the TTP. क्यों इस और इस बात की जो एडमिशन है वो खुद टीटीपी के जो इनकम्बेंट जो चीफ है, इनकम्बेंट अमीर है वलीउर रहमान मसूद, उन्होंने अपनी किताब में इस बात को एतराफ़ किया है कि टीटीपी जो है उसने ही बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को पिंडी खिलाफ जो टेररिज्म की कार्रवाई थी वो की थी। और भी बहुत सारे अटैक हुए, पब्लिक प्लेसेस पे अटैक हुए, हमारे होटल जो बड़े बड़े होटल्स हैं जिस तरह हुआ था 8 में, उस तरह इस्लामाबाद में जो मेरिट होटल है उस तरह और शूट आउट मुख्तलिफ हुए थे, मिलिट्री के ऊपर भी, हमारी जो उसके ऊपर सिटीजन है उसके ऊपर भी। तो इट कंटिन्यू, द टीटीपी मिलिट्री ऑपरेशन किए गए 2014 को, जो मिलिटेंट्स उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान में इलाके में एक बच्चों का स्कूल था उसको अटैक किया, about 150 innocent children and their teachers and the staff they got killed. तो उसके बाद एक ऑपरेशन ज़रबे अज़्म शुरू हुआ, हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया टेररिज्म के खिलाफ, और उसके बाद टीटीपी को हमने कट किया, कट टू साइज किया, काफी हद तक कट टू साइज किया। मीनवाइल 2020 में आपको याद होगा, फरवरी 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स ने जो अफगान तालिबान है उनके साथ एक ट्रूस साइन कर लिया। जब वो ट्रूस साइन हो गया तो ये जो पाकिस्तानी वर्जन ऑफ तालिबान थे ये ज्यादा उधर लोकेट हो चुके हुए थे क्योंकि पाकिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन जारी था इनके खिलाफ। तो पाकिस्तान जो है उसके लिए एक नए चैलेंज का स्टार्ट इसलिए हुआ कि पाकिस्तान इनिशियली थॉट के अफगान तालिबान पूरा कंट्रोल कर लेंगे टीटीपी पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पाकिस्तान के अंदर जो 2 years बैक इनके साथ निगोशिएशंस हुए जो कि गलत थे, जो नहीं करने चाहिए थे, जिसका एतराफ अभी पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री वो करती है, वो नहीं होने चाहिए। लेकिन वो निगोशिएशंस हुए तो उस दौरान में जो मिलिटेंट्स हैं वो अफगानिस्तान से कुछ मिलिटेंट्स आ गए पाकिस्तान में भी, तो अब वो अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों पर। द थ्रेट इज फियर बट इट इज नॉट एज बिग एज इट वाज बैक इन 2007, 8, 9, 10, 11 to 14। मेरा सवाल आपसे ये है आजाद साहब कि हम सब जानते हैं कि जो टीटीपी है वो पाकिस्तान सरकार को अपने हिसाब से इस्लामिक नहीं मानती है और वो पाकिस्तान में शरिया कानून लेकर आना चाहती है, जैसे कि वो उनका मकसद है। सवाल मेरा आपसे ये है यहाँ पर कि पाकिस्तान जो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इसकी कॉम्पोजिशन में आपसे समझना चाहती हूँ कि इसमें किस किस तरह के लोग शामिल हैं, कौन कौन लोग हैं, क्योंकि कहा जाता है कि टीटीपी में 8 से 10 हजार लोग शामिल हैं। अंबर, बात यह है कि जो टीटीपी है उसको हेड उसके एक अमीर करते हैं और उसकी एक शूरा है, और आगे उनकी डिफरेंट जो फोरम्स हैं, मीडिया के लिए अलग से एक उनका ग्रुप है, जो उनके फतवा का यानी कि जो कि रिलीजियस ऑर्डर्स जो जारी करते हैं उनका एक अलग से फोरम है। ज्यादातर इसमें पश्तून हैं, इसमें कुछ पंजाबी भी हैं और कुछ और लोगों और एरियाज के लोग भी हैं। लेटली कुछ बलोच वो भी बीच में हिस्सा बने हैं, लेकिन प्रीडोमिनेटली इट्स ए पश्तून ऑर्गेनाइजेशन विच इज उसके रिक्रूट्स जो हैं वो मुख्तलिफ है। जी, अच्छा आजाद साहब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है वो कई सारी बॉर्डर क्रॉसिंग्स है।
लेकिन 2 क्रॉसिंग्स ऐसी हैं चमन और खैबर पास जिसको इंटरनेशनल जो स्टेटस मिला हुआ है। पाकिस्तान भी जो आतंकवादी हैं और जो नैरकोटिक्स है उस सबको और जो अवैध एंट्री है यानी कि हम जिसको कहते हैं कि इलीगल एंट्री है, उस सबको रोकने के लिए जो बॉर्डर है उस पर काफ़ी मज़बूती से उन्होंने फेंसिंग और सारी चीज़ें की हुई हैं। सवाल ये है कि तालिबान को रोकने के लिए जो उनकी इलीगल एंट्री है, उसको रोकने के लिए जो पाकिस्तान फोर्सेज़ हैं वो उनके पास किस तरह के क्या-क्या इंतज़ाम है, किस तरह से फिर टीटीपी पाकिस्तान में एंटर कर पा रही है? ये सवाल मेरा आपसे है। देखिए, जो पाकिस्तान है उसने बॉर्डर को सिक्योर बनाने के लिए जो मॉडर्न गैजेट्स हैं वो भी लगाई हैं। डिफरेंट जो फोर्सेस हैं वो वहाँ पे डिप्लॉयड हैं। इमिग्रेशन, आपको पता है, हमारी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA जिसे कहते हैं वो करती है। फिर मिलिट्री भी वहाँ पर लगी हुई है, FC भी लगी हुई है, रेंजर्स भी लगी हुई है। तो ये चीजें वहां पर मौजूद है। द प्रॉब्लम इज नॉट दिस कि उन्होंने क्या किया है। अब ये मसला ये है कि अफगानिस्तान में हर जो अफगान है या पश्तून है, हर दूसरा पर्टिकुलरली पश्तून जो है वो वो दाढ़ी रखता है, वो शलवार कमीज पहनता है, उनमें से अक्सर कारोबार करते हैं, अपना काम करते हैं। और जो मिलिटेंट है वो भी इसी हुलिये में होता है। किसी के माथे पे तो नहीं लिखा हुआ कि वो मिलिटेंट है। देयर आर वेरी गुड पीपल एवरीवेयर। अफगानिस्तान में भी बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, बड़े प्यार करने वाले लोग हैं। बट एट द सेम टाइम जो वहां पे मिलिटेंट्स भी हैं, क्योंकि वहां पे स्टेट को प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करती रही, तो वहां पे मिलिटेंट्स भी हैं। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि दिस साइड ऑफ पाकिस्तान पश्तून जो कौम है, नेशन पश्तून जो लोग हैं वो यहाँ पे भी बसते हैं और उनकी यहाँ पे रिलेशनशिप्स हैं। वो डेली यहाँ पे मूव करते हैं, आते हैं, जाते हैं। तो पाकिस्तान तो जो फेस वैल्यू को देखता है और उसको देख के उनको पाकिस्तान में एंट्री मिलती है। अगर यहाँ पर आके कोई टेररिज्म की कार्रवाई कर दे और चूंकि अफगानिस्तान का कोई डाटा सिस्टम भी मौजूद नहीं है कि उनके पास पूरा डाटा हो अपने शहरियों का कि किसके ऊपर कोई केसेस बने हैं। पाकिस्तान का तो डाटा है कि अगर किसी भी सिटीजन के बारे में कोई केस हो तो आप हमारे यहाँ डाटा मौजूद है जो चेक किया जा सकता है। हमारा बड़ा मॉडर्न सिस्टम है ID कार्ड्स का, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन है। अगर किसी के ऊपर कुछ भी चार्ज आता है तो इमीडिएटली पता लग जाता है कि किसी ने क्या कोई क्राइम किया था या किया है। तो अफगानिस्तान का नहीं है। तो फिर हम जितनी मर्जी गैजेट्स लगा लें, ये प्रॉब्लम आती रहती है। लेकिन हम पाकिस्तान ने एक बड़ी हद तक इसको कंट्रोल भी किया। जी। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि हम सब जानते हैं कि तालिबान की अफ़गानिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान सरकार की तरफ से इनफैक्ट जो आपके डिफेंस मिनिस्टर की मैं बात कर रही थी ख्वाजा आसिफ की, उन्होंने अभी बीते दिनों जो बयान दिया उसमें उन्होंने ये बात कही कि हमारे अफ़गानिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। आज की जो मौजूदा सरकार है इसके और टीटीपी को के हमलों को रोकने को लेकर हमने देखा भी है कि वो अफ़गानिस्तान के पिछले दिनों कई दौरे भी लगे पाकिस्तान सरकार की तरफ से, लेकिन उसका कुछ असर होता नज़र नहीं आ रहा है। बजाय इसके कि जिस तरह से जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान को टेक ओवर किया था, तो ये हालात नज़र आ रहे थे कि ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिश्ते बेहतर होंगे, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया और आज जो हालात हैं, उसका इल्ज़ाम ख्वाजा आसिफ साहब भारत की ओर भी लगा रहे हैं कि भारत भी तालिबान को मदद कर रहा है उनको एडवांस हथियार मुहैया कराने में और इस तरह की चीज़ें। इन सारे बयानों को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपने अभी कहा कि हम सबको मिलकर इसका सामना करना है। फिर पाकिस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से इस तरह के हमले होते हैं, तो फिर आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि भारत तालिबान को असला दे रहा है। ऐसी कोई बात मेरे नोटिस में नहीं है। आई डोंट नो आप किस बात का रेफरेंस दे रही हैं। जो
मैं उनकी इस वक्त ताज़ा बयान सिचुएशन की है। बात कर रही हूँ, जिसमें उन्होंने तालिबान को लेके कहा है, अफ़गानिस्तान को लेकर, कि अफ़गानिस्तान तालिबान को मदद कर रहा है और सारा जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल कर रहा है, जो दोहा समझौता हुआ था, उसके हिसाब से अफ़गानिस्तान अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान की जी, बात नहीं, अफ़गानिस्तान मैंने की कहा कि बात आप की ये, हाँ जी, और हाँ, साथ में उन्होंने भारत की ओर भी इशारा किया कि और देश भी मदद कर रहे हैं तालिबान की। नहीं नहीं, ही डिडंट नेम इंडिया, उन्होंने हाँ, हिंदुस्तान का तो नाम नहीं लिया। सवाल की तरफ इशारा तो किया है ना। नहीं, अब आप देखें ना कि किसी के बारे में भी हम बात करें, पाकिस्तान के जो लोग हैं तो हमारे हिंदुस्तान से एकदम डाउट आता है कि ये हमारी तरफ है, और आप लोग किसी और के बारे में बात करें तो हम आप पे डाउट करते हैं कि आपने हमारे बारे में भी बात की। तो ये मेरे ख्याल में हमें ये जो प्री जजमेंट्स है ना, या जजमेंटल एटीट्यूड, उसे नहीं होना चाहिए। देखिए, तो फिर कौन है, फिर आप बताइए हिस्ट्री किसके बारे में बात हो रही है? हिस्ट्री हिस्ट्री सुन लीजिए। हिस्ट्री है पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की एक, और पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है, और हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ रहा है। दिस इज रियलिटी। लेकिन ये कोई अच्छी हिस्ट्री नहीं है। वी शुड bury the past and we should look forward. अब now the world has been changed. आप देखिए कि सऊदी अरेबिया और ईरान ने आपस में हाथ मिला लिया। आप देखिए कितनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है पूरी दुनिया में, और भी यहाँ बहुत पे सारी अगर डेवलपमेंट्स हो मैं रही एक हैं। बात कहना तो चाहती हूँ आपसे, हालाँकि इस सवालों के जवाब आपको देने हैं, लेकिन मैं एक एज़ इंडियन यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहती हूँ। जैसे आप पास्ट की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, मैं हिस्ट्री आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी भी पाकिस्तान की तरफ कोई भी हमला इनिशिएट नहीं किया है। चारों की चारों वॉर हुई, हमला पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट किया गया, रिश्ते सुधारने की कोशिशें भारत की तरफ से की गई और पाकिस्तान की तरफ से उसके बावजूद भी हमले किए गए। और कभी भी भारत किसी भी ये इतिहास है भारत का कि भारत कभी भी किसी के खिलाफ कोई जंग या किसी भी तरह का इन्वेजन भारत का उद्देश्य नहीं रहा है। भारत हमेशा विकास और शांति की बात करता है, आज भी और हजारों साल से। तो मैं उम्मीद अंबर करती अंबर हूँ अंबर मैं अर्ज करूं, अंबर 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 पता है क्या? जी, ये वी शुड नॉट गेट इनटू इन दिस डिबेट कि आप ये कहें कि भारत ने कभी जंग नहीं की, और मैं कहूंगा कि पाकिस्तान ने कभी जंग नहीं की। ठीक है, ये दीज आर नॉट द थिंग्स विच यू एंड मी शुड डिसाइड। हिस्ट्री इज देयर, वी शुड रीड द हिस्ट्री, और हिस्ट्री इज द बेटर जज। what is the lesson? We should discuss the lesson. lesson ये है कि जंग जिसने भी की, वॉर जिसने भी की, उसकी जो रिजल्ट है वो अच्छी नहीं निकली। उसका रिजल्ट ये निकला है कि पाकिस्तान में भी गुर्बत है, और पॉवर्टी है, एंड देयर इज अ लॉट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया एज वेल जो कि बड़े पुअर हैं। तो मेरे ख्याल में इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ब्लेम ईच अदर, we should shake hands, and we should look forward and resolve the issues. And being a journalist, these are the things to do with the governments. Being a journalist, we shouldn't spread hate. I mean, this is my view. There would be many mistakes. I always talk about peace. It's just that I was stating facts that India has never initiated any war or anything against Pakistan. Amber, again, this is what is my point. If you would narrate some facts, I